من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثناء پروردگار مطلب مجھے ذرا پانی چاہیے ہوگا. جی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بھی جوائن کریں گی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کوشش کریں گے کہ اپنی معرفت میں اور اضافہ ہو. اور جب دیکھیے ہم کسی کو پہچانتے ہیں نا، تو پھر اگر محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور مزید پہچان رہے ہیں، مزید ان کی شخصیت سامنے آ رہی ہے، تو پھر اس محبت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دل بھی ڈھلتا چلا جاتا ہے. پھر ان کی پسند کو اپناتے بھی چلے جاتے ہیں. پھر ان کے دکھوں کو یاد کر کے افسردہ تو ہوتے ہیں، لیکن ان دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو ذات وقت کے امام کی ہے، ان کے تاجیل کی ظہور میں کی تاجیل کی دعا بھی کرتے ہیں. تو یہ معرفت ہی تو ہے کہ ہمیں احساس ہو. جی بسم اللہ. معذرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثناء پروردگار تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ آل کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علیہ. آپ سے فرا اس سوچ کا ہی پیدا ہو جانا کہ معرفت کیا ہے اور ہماری صحیح ان بات، کے ساتھ عقیدت کیا ہے، اور صحیح بات، ہم کیا یہ سعادت رکھتے ہیں کہ ہم نے مودت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، چونکہ صحیح یہ بات. وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ مودت کا حق، مودت کا حکم خدا کریم نے دیا ہے اجر بے شک. رسالت ادا کرنے والوں کے لیے. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو. مودت سبحان اللہ. گزشتہ دن بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی تو یہی بات تھی کہ مودت اور معرفت، ہم یہ بہت ساری چیزیں بات کرتے ہیں، لیکن اگر سمجھا جائے کہ قول اور فعل میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. مودت کو کہنا آسان ہے لیکن اسے سمجھنا بہت مشکل ہے. معرفت کی ہم بات کرتے ہیں لیکن معرفت کی میم سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں. اور اس بی بی کا ذکر کرنا کہ جو خدا کریم کی کنیز خاص ہے، اور حقیقت میں جانیے کہ وہ بی بی کہ جس کی کل مدت حیات 18 برس ہے. 18 برس میں وہ اس دنیا سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی صبت علیہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب یہاں فرا اس بات کی طرف ذرا توجہ کریں، بی بی کے نام کے عدد 9 ہیں، فاطمہ. اور بی بی کتنی عمر میں اس دنیا سے جا رہی ہیں؟ 18 سال کی عمر میں. 9 سال مکے کے اور 9 سال مدینے کے. وہ بی بی، اور جب آپ 18 کو جمع کریں 8 اور 1 9 بنتا ہے. یعنی کیا اگر بی بی کی ہستی کو دیکھا جائے تو 9 کا عدد وہ عدد ہے کہ جو بی بی، اور اس کے بعد پھر کاؤنٹنگ آگے بڑھتی نہیں ہے، 1 سے لے کر 9 تک کاؤنٹنگ ہے، اور اس کے بعد ہم کاؤنٹنگ بڑھاتے تو جاتے ہیں لیکن اصل میں 9 وہ حصہ ہے کہ جو خدا کریم نے اپنی کنیز خاص کے لیے رکھا. اور اگر کوئی سبحان اللہ. آج کے 9 مرتبہ، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انگوٹھی ملا کرتی ہے کہ جس کے اوپر ایک نقش بنا ہوا ہوتا ہے 9 کا، اور وہ 3 رو میں 3 روز ہوتی ہیں اور ہر جی ایک میں 9 لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. آج بتانا اس لیے چاہ رہی ہوں، اس انگوٹھی کو تو ہم اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں اور بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 9 کے عدد والی انگوٹھی لا کر دے دیں، اور وہ انگوٹھی سبحان اللہ. پہنتے ہیں اور اس سے بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے
नाम के अदद के बराबर की अंगुष्ठरी है और इसका बड़ा फैज़ है। और जो हस्ती बेशक। है ही वाहिद फैज़ जिससे मवद्दत खुदाए हाँ, करीम ने वाजिब, वो बेशक। बीबी के जो पारे जिगरे रिसालत माब है, वो बीबी के जो बिज़त मिंदी है, वो बीबी जो हसनैन करीमैन की माँ है, वो बीबी जो कुल्ले ईमान की ज़ौजा है, वो बीबी कि जवानान जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों में है, मौला मुत्तकियान जो कुल्ले हाँ, ईमान है, उन ईमान की निस्फ मुहाफ़ज़ा सैयदा हैं, वो रहमतुल सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन खुदाए करीम ने रूए अर्ज़ के ऊपर रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, वो उसकी रहमत है, उसके घर में वसल्लम। रहमत बन। इतनी सल्लल्लाहु बीबी की फ़ज़ाइल हम उसका हक अलैहि। अदा नहीं कर सकते। और बेशक, इन बेशक। आयात में गुज़िश्ता दिन भी मैंने आपसे यही बात की थी कि सवाल तो ये पैदा होता है कि हमने इतने अयाम, इतने दिन बीबी की याद के बगैर गुजार कैसे यस, दिए? हम क्यों इस दुनिया के अंदर गुम रहे? हम क्यों ने? और आज हम सही बात शुक्र है। अदा करें, खुदाए करीम ने हमें ये औकात, ये लम्हात अता फरमा दिए कि जिसमें हम बीबी की ज़ात मुबारक के ऊपर बात करें और उनकी सीरत को अपने लिए मशअल राह बनाएं और अपने बेशक। अंदर, अपने वजूद के अंदर दुनिया की जो मुश्किलात हैं उनको हील करें। ये मसीहा है, ये बीबी हाँ, मुस्तजाबे दुआ है, ये बीबी खुदा का राज है, ये मामूली हाँ, बीबी नहीं है, बल्कि बेशक, जिसे बेशक। दुआ करके खुदा ने जब अपने महबूब को अता किया, दो ही तो ऐसी हस्तियां हैं जो खुदा ने अपने महबूब को अता की। एक को अपने घर में बुला कर दिया और दूसरे को अपने अर्श पर बुला कर दिया। मौला सुभान अली अल्लाह। को से दिया और सैयद अस्लाम अल्लाह को महराज पर, अर्श पर बुला कर दिया। तो ये दोनों हस्तियां ऐसी हैं कि अगर हम हकीकी मायनों में इनसे मुतमस्सिक हो जाएं तो यकीन जानिए कि हमारे लिए पर्दा पर्दा नहीं रहेगा, बल्कि खुदाए बेशक, करीम हमें शरह सद्र अता फरमाएगा। और वो शरह बेशक। सद्र है कि दुनिया में बैठकर आखिरत की खबर रखना। दुनिया के हाँ, न बनते हैं, दुनिया में रहेंगे, कुछ देर बेशक, के लिए आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। बेशक। जब जाएंगे तो कुछ तो लेकर जाएं। ले जाने के लिए हमारे पास क्या है? हम कहें कि मालिक नमाजें लेके जाएंगे, रोज़े लेके जाएंगे, हज लेके जाएंगे, ज़कात लेके जाएंगे, खुम्स लेके जाएंगे, जितने भी ये वाजिबात हैं वो लेकर जाएंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, ये सब लेकर जाओगे, लेकिन जिन्होंने तुम्हें बताया क्या उन्हें भी साथ लाओगे? क्या उनकी मार्फत भी रख क्या कर आओगे? क्या बात, कि जिन्होंने क्या तुम्हें बात। नमाज का सलीका बताया, तरीका सुभान बताया, अल्लाह। क्या उनकी याद भी दिल में लेकर आओगे? जब तुम्हारी नमाजों के साथ इन हस्तियों के ऊपर दरूद होगा तो नमाज कबूल होगी। और जब तुम जितने वाजबात अदा करोगे, इनकी मोहब्बत और मवदत हर अमल के अंदर होगी, वो खुदा की बारगाह में कबूल होगी। और हम इस रिवायतों को पढ़ते हैं कि वो नमाज नमाजी पढ़ने वाले के मुंह पर मार दी जाती है कि जिसमें दरूद नहीं पढ़ा जाता। मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर जिस नमाज में दरूद नहीं है वो नमाज खुदा को कबूल नहीं है। और ये बीबी तो कनीज़ ख़ास है। अब मार्फत की बात करते हैं। कौन सी मार्फत चाहिए? क्या बीबी के खदो खाल पर बात होगी? क्या बीबी की ज़िंदगी पर बात होगी? बीबी की करामत पर बात होगी? बीबी कैसी ज़ौजा थी, इस पर बात होगी? बीबी कैसी बेटी थी, इस पर बात होगी? बीबी कैसी माँ थी,
इस पर बात होगी, बीबी कैसी मुअल्लमा थी, इस पर बात होगी। तो बस एक चंद जुमलों में कह दूं कि माँ है तो बाबा कहे उम्मे अबीहा, और बेटी बनकर आई है रहमतुल आलमीन के घर में रहमत बनकर, कुल्ले ईमान की दिस मुहावजा सैयदा सामने रहा, जवाना ने जन्नत के सरदारों की जन्नत इस बीबी के कदमों के, और जिसने बीबी बेशक के साथ ऐसा ताल्लुक जोड़ा कि जो हकीकत में वो बीबी कि जो हमें इस दुनिया में उन हिजाबात को हमारी आंखों से हटाती है कि हटाओ और देखो कि मेरे घर की रहने वाली कनीज अर्श की खबरें सुबह रखती है, कनीज अर्श की खबरें रखती है। तो तुम्हारे लिए, तुम अपने को कनीजान ज़ारा मेरी कनीजों में शामिल करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास करामत क्यों नहीं? क्योंकि जब सैयदा की ज़ियारत और मार्फत की बात हो, हमें सोचना चाहिए कि मार्फत जबान से मीम ए रे फे ते कहने का नाम नहीं है, बल्कि उसे अपनी रूह में, अपने वजूद में उतारने का नाम है। और बेशक जो बेशक अपने वजूद में उतार लेता है तो खुदाए करीम ऐसे लोगों को शरह सद अता करता है। जिंदगी के अंदर, जिंदगी के अंदर जो मौजूद है, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि सही बात जिंदगी है। में जिंदगी अता फरमाता है कि जो अमर हो जाते हैं। वो निगाह अता फरमाता है कि जिसकी बिना के ऊपर इंसान अपने मकाम को देखता है। वो दिल अता फरमाता है कि जिसे शरह सद्र होता है। हम बीबी के मसाइब की बात करते हैं, हम बीबी की अजमतों की बात करते हैं। बीबी के मसाइब क्या हम बयान कर सकते हैं? बीबी ने तो खुद ये बात कही है ना कि मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि अगर रोशन दिनों पर पड़ते तो तारीक रातों में तब्दील हो जाते, तारीक रातों में तब्दील हो जाते। पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो इतने मसाइब, उन मसाइबों का क्या हम हक अदा कर सकते हैं? मैंने तारीख में पढ़ा कि जब 4 बरस का कमोबेश सन है, मक्के का ज़माना है, और अल्लाह के रसूल दीन की इशाअत के लिए लोगों को दीन की तरफ तबलीग कर रहे हैं, और ऐसे में अल्लाह के रसूल के साथ कैसा रवैया रखा जाता है। तारीख कहती है कि कोई पत्थर बरसाता था, कोई कूड़ा फेंकता था, और जब अल्लाह के रसूल जख्मी हालत में घर में आते थे तो वो बीबी कि जिसकी माँ का साया उसके सर से बहुत बचपने में उठ गया, जख्मी बाबा को देखती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और सैयदा अपने बाबा के जख्मों को धुलाती जाती हैं और कहती जाती हैं, बाबा आपके ऊपर ये इतना बड़ा जुल्म किसने किया? बाबा, जब एक एक जख्म को साफ करती है सैयदा खून के आंसू रोती है। हमें तारीख में कहीं मिलता 18 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बीबी की कि कभी बीबी की कहीं मुस्कुराहट की बात आई हो। उम्मुल मसाइब है ये बीबी। कैसे मुस्कुराए सैयदा कि जब मक्के का ज़माना है तो बाबा के ऊपर इतने मसाइब हैं, और जब मदीने का ज़माना है तो फिर इतनी जंगें हैं, और जब बीबी का अक्त हो गया तो अब डबल मुसीबत हो गई। कभी बाबा के ज़ख्मों को धोती हैं और कभी सरताज शौहर के ज़ख्मों को धोती हैं, और किस तरह से ज़ब्त से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रोने से कहीं मेरे बाबा की ताकत कम ना हो जाए, कहीं मेरे शौहर की ताकत कम ना हो जाए। हर आंसू को अपने दिल पर गिराती है वो बीबी। उम्मुल मसाइब अगर वो बीबी कहे, ये बीबी सैयद इस्लाम ने कहा है, ये किसी की रिवायत नहीं बता रही, ये वो जुमले हैं
کہ جس کے لیے سید اسلام اللہ نے اپنے درد کو بیان کیا ہے، اپنے دکھ کو بیان کیا ہے۔ آج بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اہل محلہ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ سیدہ کے گھر میں بھی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بی بی کے گھر میں بھی آئے ہیں، لیکن کیسے آئے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا جس کا باپ گزر گیا ہو اس کے گھر پر کیا آگ لے کر آیا جاتا ہے؟ کیا اس کے دروازے کو جلایا جاتا ہے؟ اور صرف جلایا نہیں گیا، کہتے ہیں کہ وہ دروازہ جل گیا، اس کی چوکھٹ جل گئی، اور دروازہ کو جب دھکا دیا تو دروازہ جب نیچے گرا ہے تو سیدہ دروازے کے پیچھے تھی۔ جب دروازہ گرا، دروازے کے ساتھ سیدہ اس دروازے کے نیچے آ گئی۔ اب آپ اس منظر کو ذرا دیکھیں، بی بی نے ایسے نہیں کہا۔ 75 یا 90 دن سے زیادہ سیدہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہی۔ صرف ایک تصور کر لیجئے، مودت کی بات کر رہی ہوں نا، جہاں محبتیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں، جہاں محبت قربان جاتی ہے، وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم پر یہ بالکل واجب صحیح۔ ہے۔ تصور کی آنکھ سے تو دیکھیں، سیدہ زمین پر ہے، دروازہ بی بی کے اوپر ہے، پشت کے بل بی بی گری ہے، اور دروازہ بی بی کی سینے اور شکم کے اوپر ہے، اور بی بی حاملہ ہے جناب محسن سے۔ بی بی مولا محسن کی ولادت کے دن نزدیک ہے۔ تصور کریں، بہو بیٹیاں رکھتے ہیں، خود بھی ہم مائیں ہیں، کہ ایسے میں کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر یہیں تک بات نہیں ہوئی، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ جو دروازہ جلا رہے تھے نا، وہ ایک بندہ نہیں تھا، وہ بہت سارے لوگ تھے، اور وہ اپنے جو جیسے بھی ان کے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جنگ میں جو لوگ جوتے پہنتے ہیں، ان کے بڑے بڑے، آج کے زمانے کے تو بوٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ اور طریقے کے بڑے بڑے موٹے موٹے، کہ جنہیں رسیوں کے ذریعے سے انہیں پیروں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا تھا کہ ان کے بھاگنے میں، چلنے میں، دوڑنے میں کوئی کمی نہ آئے۔ آج وہی منظر مجھے مدینہ منورہ میں بھی نظر آتا ہے کہ روضہ رسول کے سامنے جنت البقیع ہے اور پہرا ہے، کہ کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ ان جوتوں کے ساتھ، مردان وجود کے ساتھ جب چلتے ہوئے اس دروازے سے گزرے ہوں گے، ایک نہیں گزرا، کئی ایک گزرے، ایک نہیں گزرا۔ جب جب کوئی گزر رہا تھا، ایک آواز آتی تھی، ہائے بابا میرا محسن، ہائے ابو الحسن، ہائے بابا میرا۔ اس سیدہ کے کرانے کی آواز تھی، لوگ گزر رہے تھے، اندر گئے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی باہر نکلو، علی کہاں ہے۔ خدا جانے، جب ساری فوج، جتنے بھی لوگ تھے، در بطول میں، در بطول سے گزرتے ہوئے، در بطول سے گزرتے ہوئے، یہ وہ دروازہ ہے جس پر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک اللہ کے رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، بتانے کے لیے یہ دروازہ جلانے کے لیے نہیں ہے، یہ احترام کے لیے ہے، یہ باب جنہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ نجات کا دروازہ ہے، یہ بے معرفت کا شک۔ دروازہ ہے۔ اس زمانے میں یہ معرفت تھی، ابھی اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے، اور یہ پرسہ دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ صحیح بات۔ افسوس
और खुदा जाने सैयदा ने कैसे उस दरवाजे को अपने ऊपर से हटाया। जहाँ तक मैंने कुछ जाकरीन से कुछ सुना भी कि जो दूर खड़े हुए मासूम बच्चे जो हसरत से देख रहे थे, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी इमाम हसन की, मौला हुसैन की ज्यादा उम्र नहीं थी, बीबी कुलसूम तो बहुत छोटी थी, बीबी जैनब भी बहुत छोटी थी, ऐसे नहीं थे। बच्चे घर की दीवार से हसरत के साथ खड़े हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे रोकें। फिर यही हो कि जब बीबी ने कोशिश की होगी तो नन्हे नन्हे हाथों से हसन मुश्तबा उस दरवाजे को उठा रहे होंगे। हुसैन मजलूम है करबला, साथ में शरीकतुल हुसैन, और शायद 2 बरस की उम्र है, जो घुटनियों चलती हुई उम्मे कुलसूम उस दरवाजे को अपनी माँ के ऊपर से उठा रही होगी। तारीख कहती है दरवाजा जैसे भी उठा, ये इतनी वजाहत के साथ नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ जिसकी पसली टूट चुकी हो, क्या उसमें इतनी शिकन, उसमें इतनी तवानाई होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे इस दहशत गर्दी को देखते हुए दीवार से लगे खड़े हुए हैं और सहमे में खड़े हुए हैं, जैसे ये दंदनाते हुए बाहर सहने खाना में आ गए, इतना मौका मिला कि अपनी माँ को इस दरवाजे की आजाद करें। बीबी उठी है और रिवायतें कहती हैं चादर को संभाला, एक हाथ पहलू के ऊपर है, पसली टूट चुकी है। तसव्वुर करो, पसली टूट चुकी है और बीबी कहाँ है अबुल हसन? छोड़ दो अबुल हसन को, छोड़ दो अबुल हसन को। काश के मैं उस अंदाज में बयान कर सकती, लेकिन हम सब इस तस्वुर को कायम करें। एक ही आवाज है कि इमामत को बचा रही है सैयदा, छोड़ दो अबुल हसन को। अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा था फातिमा बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा रिसालत का हिस्सा है। अल्लाह ने क्यों कहा था इस चादर किसा के नीचे ये फातिमा है, इमामत की कान, नबूवत की कान, रिसालत की कान। अब इस वक्त वो प्रैक्टिकल था कि जहाँ शिकस्ता पहलू के साथ सैयदा सलाम अलैहा कहती चली जा रही हैं। और मैंने रिवायतों में पढ़ा कि जब बीबी बमुश्किल चादर को संभालते हुए और पहलू पर हाथ रखे हुए, एक हाथ पहलू पर है और एक हाथ से तसव्वुर कायम करना पड़ा। क्योंकि हम माजी से दूर नहीं हैं, हम उस वक्त मौजूद थे, इसीलिए तो आज हम अय्याम फातिमिया को मनाते हैं। और मेरी गुजारिश है, अगर कोई ये कहता है कि इतना लंबा गम, इतना लंबा, नहीं, ये कहीं ये इनकी लुत्फ व करम है, वरना हक तो ये बनता था कि हम किसी रोज भी फर्श अदा को बढ़ाते ना। ये इनका लुत्फ व करम है। और तसव्वुर की आंख मुझे ये दिखाती है कि जब बीबी पहुंची है ना, तो उस वक्त मौला अबुल हसन मौला मुत्तकियान के गले के अंदर रस्सी डाल दी गई है और इस तरह से खींच रहे हैं, मौला मुत्तकियान को खींच रहे हैं। बीबी से कुछ न बन पड़ा, एक हाथ पहलू पर है, एक हाथ से मौला की अबा के दामन को पकड़ लिया और कहती है कि मैं नहीं जाने दूंगी, अबुल हसन को छोड़ दो, मैं नहीं जाने दूंगी। एक हाथ शिकस्ता पहलू के ऊपर, एक हाथ मौला की अबा के ऊपर, या मैं समझती हूँ कि शायद अबा के दामन को पकड़ा होगा या शायद मौला के हाथ को पकड़ा होगा। दोनों सूरतें हो सकती है, या अबा का दामन होगा या मौला का हाथ होगा। बस तारीख कहती है कि जब वो खींच रहे थे तो मौला मुत्तकियान के साथ साथ
सैयदा खिंचती चली जा रही थी। यानी कि इस तरह से जरा तस्वुर कायम कर लीजिएगा कि एक शख्स को रसन से पाबंद रसन करके उसे खींचा चला जा रहा है, और एक बीबी जो हाथ को सख्ती से पकड़े हुए है, पहलू में ताकत नहीं है। और अब मंजर से देखना कि मौले मुत्तकियान के साथ साथ पारे जिगर सैयदा सलाम अल्लाह सहने फातिमा में खिंचती चली जा रही है, और बीबी किसी सूरत में इमामत के हाथ को नहीं छोड़ रही, क्योंकि तारुफ कराने वाली है इमामत का, तारुफ कराने वाली है रिसालत का। बस तारीख ये कहती है कि एक मर्तबा एक शख्स ने दुर्रा बुलंद हुआ और इस सख्ती से उस जब दुर्रे को मारा, जिसे आम जबान में हंटर भी कहा जाता है, जो एक लेदर की बनी हुई सी कोई चीज होती है जिसे आम तौर के ऊपर जानवरों के ऊपर बरसाया जाता है या उनके ऊपर बरसाया जाता है जिन्हें सजा दी जाती है। सैयदा एक पहलू शिकस्ता है, दाएं हाथ से बाएं हाथ से पहलू को पकड़े हुए है, और दाएं हाथ से मौले मुत्तकियान के बाजू को पकड़े हुए है। बस वो दुर्रा बुलंद हुआ, जब वो नीचे आया है ना, तो तड़प के सैयदा ने हाथ छोड़ दिया। और तारीख कहती है उसके बाद जितने दिन सैयदा जिंदा रही, फिर दाएं हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। वो बीबी कि जो बिज़्ज़त रसूल है, वो बीबी हम क्या हक अदा कर सकते। ये दिन भी थोड़े हैं, काश मुझे इतनी जिंदगी मिलती कि हर शब रोज सैयदा को मसाइब को याद करती। ये तो इनका लुत्फ व करम है कि हमें दुनिया में मुख्तलिफ, लेकिन जब दुनिया में हमें मसाइब आते हैं तो कौन याद आता है। सैयदा के वसीले से दुआ मांगो, मुस्तजाब दुआ है। बीबी बाबुल हवाइज है, फिर हम याद बेशक करते। तो आज दुनिया इस बात की तरफ तवज्जो करे, ये किसी गैर का तस्करा नहीं है, ये उसका तस्करा है कि जिसकी जियारत के लिए अल्लाह के रसूल बार बार तशरीफ लाते थे और कहते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो मैं सैयदा के पास आता हूँ। जब मैं चाहता हूँ कलाम खुदा को सुनूं, अंदाज़े कलाम खुदा को सुनूं, तो मैं अली के पास जाता हूँ। कि जब मैं महराज पर गया था तो दो ही तो चीज़ें थी कि महराज पर मैंने जो गुफ्तगू सुनी तो वो लबो लहजा अली था, तो उस लहजे को सुनने के लिए अली से बात करता हूँ। और जब मैं जन्नत के उस फल की खुशबू को सूंघता हूँ, उसे मुझे सैयदा सलाम अल्लाह से वो खुशबू आती है जिसकी फजीलत अल्लाह के रसूल इतना करें। उस बीबी के मसाइब हम सारी जिंदगी गुजर जाए सिर्फ एक ही जुमला पढ़ते रहे, एक ही बात कहते रहे कि बीबी कहती है हाय बाबा मेरा मौसिम, हाय बाबा मेरी पसलियां टूटी जाती हैं, हाय बाबा मेरी पसलियां, हाय बाबा मेरा मौसिम। यानी पूरी मजलिस आप कुछ ना पढ़ें, सिर्फ इस तकलीफ को याद करें। मैंने एक आलिम दीन की मजलिस को सुना, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये मजलिस पढ़ी कि सैयदा सलाम अल्लाह की पसलियां शिकस्ता हो गई थी, मजलिस ख़त्म हो गई और वो शख्स इमाम बारगाह के पिलर से एक शख्स बैठा रहा और ज़ारो कतार रो रहा था, हिचकियां बंधी हुई थी। वहाँ का इमाम बारगाह के मुतवल्ली आए, उन्होंने कहा भाई सब चले गए हैं और आप भी जाइए, इमाम बारगाह बंद करने का वक्त है। कहा मेरे वजूद में ताकत नहीं है। कहा क्यों ताकत नहीं है। कहा जब से मैंने ये सुना है ना कि सैयद अस्लाम
पसलियां टूट गई है। कहा ये मसाई मौलाना में पढ़े थे, हाँ वो तो पढ़ के चले गए, इसमें ऐसी कौन सी बात है। वो कहता है मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी की पसली टूट जाए तो पसली का ताल्लुक कैसे है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स पसलियों के साथ हैं, तो वो कभी फैलती हैं कभी सिकुड़ती हैं। जब हमारे लंग्स फैलते और सिकुड़ते हैं तो जब जब ये सांस का अमल होगा तकलीफ शदीद होगी। फर्क गुज़िश्ता दिनों में मेरा बेटा हसन सीढ़ियों से गिरा, आपको भी पता होगा, कुछ अरसे उसने फिर प्रोग्राम नहीं किया, तो वो कहता था मामा हर सांस पे तकलीफ होती है, हर सांस पे दर्द होता है, हिल नहीं सकता था। और टूटी नहीं थी, सिर्फ एक बाल आया था, उस बाल की वजह से, यानी कि वो खुद फिर जुड़ भी गया, उसे डिसलोकेट नहीं हुई थी, उस पर इतनी तकलीफ थी कि सांस लेने में तकलीफ थी। वो मुझे बता रहा था और मुझे बीबी सैयद सलाम की वो गुर्बत याद आ रही थी। और फिर देखें इस सारी तकलीफ के बाद कि सैयदा 75 या 90 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रही और कभी शिकवा नहीं किया, कभी ये नहीं बताया कि अबुल हसन मेरी पसलियां टूट गई, अबुल हसन मेरी पसलियां शिकस्त है। हर काम ऐसे ही करती रही। हाँ, वो तस्बीह जो दाएं हाथ से पढ़ती थी अब सैयदा बाएं हाथ से पढ़ती हैं। और जब बीबी इस दुनिया से गई है और जब मौला अली गुस्लो कफन देने लगे हैं तो रिवायतें लिखती हैं कि अपनी जोजा का गुस्ल मौला दे रहे, एक मर्तबा चीख मार के मौला इस कदर गिरिया किया कि फिजा आकर कहती है मौला क्यों गिरिया कर रहे हैं। कहा फिजा सैयदा की गुर्बत रुला रही है कि इतने दिन से सैयदा की पसली टूटी हुई थी और मुझे पता नहीं चला। अब जब मैं सैयदा के हाथ को उसके पहलू से हटाता हूँ तो करहाने की आवाज आती है, अबुल हसन आहिस्ता, मेरी पसलियां टूटी हुई है। बड़ी देर तक अबुल हसन गिरिया करते रहे। खुदा जाने शिकस्ता पहलू सैयदा को किस तरह से गुस्ल दिया, किस तरह से कफन दिया। कितने ही जनाजे होते हैं। बीबी की गुर्बत को देखेंगे कि आज कलमा गो सैयदा की कब्र से न वाकिफ है। ये एक सवालिया निशान है, पूछो तो सही बेशक, क्यों, किस बेशक। लिए पोशीदा, किस लिए, किससे पोशीदा रखा गया, किससे सैयदा नाराज थी, क्यों नाराज थी, किन के पास अपना मुकदमा लेकर गई थी, किन से सैयदा सामला ने कहा था कि ये हक मेरा हक है, ये जागीर मेरे बाबा ने मुझे दी थी, इसे मैंने दीन के ऊपर खर्च करना है। और बीबी को ये कहकर भेज दिया गया कि आपका गवाह कौन है। ये कितनी बड़ी मुसीबत है। उससे पूछा जा रहा है कि अगर वो ना हो तो रिसालत मुकम्मल ना हो, अगर बेशक, वो ना हो, बेशक, अगर बेशक। रिसालत में नबूवत का एक मुकाम है तो इस नबूवत के अहकामात में सैयदा सल्लल्लाहु के भी एक मंजिल है। अल्लाह के बेशक, रसूल मर्दों के अहकामात बता सकते हैं, खवातीन के अहकामात बनाने के लिए ऐसी ही मासूम खातून की जरूरत है। वो अल्लाह की हम्म, रसूल की अदवाज नहीं बता सकती। हत्ता कि बीबी खतीजतुल कुबरा सलाम कि जो उनकी हर दिल अजीज जोजा है, उनको भी एक ऐसी बेटी की जरूरत है कि जो बताए कि माँ कैसी होती है, बेटी कैसी होती है, जोजा कैसी होती है। और उम्मत की खातून के लिए एक मशअल राह,
एक नमूने अमल हस्ती कैसे होती है, उसकी कब्र ढूंढ रहे हैं। अभी जाने का इरादा है, खुदा जन्नतुल बकी की ज़ियारत कराए, वो आबाद हो। लेकिन एक ही क्रिया है, जब जन्नतुल बकी की तरफ नजर पड़ती है, पहरेदार नजर आते हैं, हवलदार नजर आते हैं, लोग वहां ऐसे फिरते हैं। दुनिया में एक ही कब्रिस्तान है जहां पर इतनी फोर्स खड़ी भी होती है कि कहीं कोई उस जगह न चला जाए। ये ये अजमत है, ये मवद्दत है, ये मोहब्बत है। जो जाना चाहते हैं वो उस जगह की मोहब्बत, उस हस्ती की मोहब्बत में जाते हैं। वरना हमारे कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं, कौन जाता है। हमारे वालिदैन चले जाते हैं। जब कभी, माफ कीजिएगा, जब कभी जाना होता है, कभी हफ्ते में, महीने में कभी चले गए, और वो ऐसी तड़प नहीं होती, लेकिन वहाँ ऐसी तड़प होती है कि पूरा मदीना बक्के नूर है। जो जा चुके हैं उन्हें भी पता है, जो जाएंगे वो अपनी आंखों से देखेंगे। इलाही। इतना पूरा मकबरा रोशनियों में नहाया हुआ, और सामने जन्नतुल बकी, इतना अंधेरा कि जहाँ वो हस्तियां हैं कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने उनकी मवद्दत को वाजिब किया। कौन कौन हस्तियां हैं जन्नतुल बकी के अंदर? बीबी के साथ साथ, बाद बीबी की तो बहुत सारी कब्रें बनाई गई। कुछ रिवायतें मुख्तलिफ अंदाजों में है कि मौला अली ने बीबी की शहादत के बाद 70 कब्रें बनाई। 70! क्या जरूरत पड़ गई थी मौला कि आपको सईदा सलाम लल्लाह की 70 कब्रें? किससे खौफ था? कौन सी दहशत गर्दी थी? कौन लोग थे कि जो न- रिसालत माब की वो बीबी के जो बिज़त रसूल है उसकी इतनी हाँ, कब्रें बने, और आज भी दुनिया नहीं जानती। इसलिए कि जो अकीदतमंद उस वक्त वहां थे, उनसे डर था कि कहीं सैयदा की कब्र की बेहुरमती ना हो जाए। आज आप देख लीजिए कि जो रोजा जन्नतुल बकी में आज से कुछ सालों पहले तामीर था, उसे मुनहदम कर दिया गया। ये सही तारीख बात। है, कोई ऐसी बात नहीं बता रही। तो जब आज के जमाने में ऐसा हो रहा है, गुज़िश्ता चंद बरसों पहले की बात है, तो उस वक्त कैसा आलम होगा। ये गुर्बत है मौला मुत्तकियान की, ये गुर्बत है बीबी सैयदा सामने अल्लाह की। कुछ रिवायतों में मिलता है कि शायद मौला अली ने बीबी को उनके हुजरे में ही, कि जो आज मस्जिद नबी का हिस्सा है, जिसे अल्लाह के रसूल ने रियाजुल जन्ना कहा, कि और जहाँ पर कहा कि जब तुम मदीने में जाओ, जब उस जगह के ऊपर रियाजुल जन्ना के जो वो हिस्सा है कि जो रोज़े रसूल, मिंबर रसूल और बीबी के घर, रोज़े रसूल के दरमियान की जो जगह है, वहीं पर वो कभी हुजरा हुआ करता था, वो घर हुआ करता था जो बीबी फातिमा सलाम अल्लाह का था। और जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो रियाजुल जन्ना में 2 रकत नमाज पढ़ेगा, ऐसे जैसे उसने जन्नत के बागों में नमाज अदा की हो। सुभान अल्लाह। तो गया, लेकिन इस तरीके से उम्मत को बुलाया गया। ये जन्नत की नेमत और रहमत थी जो खुदा ने मुझे हाँ, अता की। शुक्राने के लिए रियाजुल जन्ना में 2 रकत नमाज अदा कर दो, चूंकि ये जन्नत में वहां से लेकर आया था। मेराज पर खुदा हाँ, ने बुलाकर मुझे ये बीबी, ये दुख्तर अता की थी। पर उस जमाने में भी कदर नहीं की, आज भी सही जमाने बात। में वैसी कदर नहीं है। लेकिन फरा गैर कहे तो कोई बात नहीं, अपने को कहना अच्छा नहीं लगता सही कि बात। हमने बिल्कुल सही बात। आज़ादी बढ़। सवाल ये है कि आज़ादारी घटाई क्यों थी। वो सही बीबी बात। अपने बाप के जाने के बाद 75 दिन या 90 दिन रोती रही, क्या हम उसके लिए 20 दिन भी नहीं रो सकते?
किसके लिए रो रही थी? अपने बाबा के लिए। क्या हम उसके गिरिये में उसके साथ शामिल नहीं हो सकते? उसके इस दर्द को तकलीफ को याद नहीं कर सकते? ए खुदाए करीम, ये दुआ करते हुए कि बीबी के फर्जंद के ज़हूर में ताजील फरमा और बीबी इलाही का तामीर हो, इलाही फिर एक इलाही तामीर होगा, हसन इलाही मुश्तबा का भी होगा, सैयद इंशाल्लाह सज्जाद का भी होगा, इमाम इंशाल्लाह जाफर सादिक का, इमाम मोहम्मद बाकिर का भी होगा। और वो ऐसा मकाम हो, खुदा वो दिन लाए इंशाल्लाह कि इलाही उन मुक़द्दस जगहों की जियारत नसीब हो। इलाही इलाही आमीन। आमीन हर इलाही आमीन फरा बहुत मदद की तलबगार, सलामत दुआओं सलामत हो। एक फिर पुरसा पेश करती हूँ शिकस्ता पहलू सैयदा का, वो बीबी कि जो ये कहती चली गई, मुझ पर इतने मसाइब पड़े, रोशन दिनों पर पड़ते तो तारीक रातों में तब्दील हो जाते, पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। पुरसा पेश करते हैं ज़माने के रसूल को, मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब को, इमाम हसन हुसैन को, बीबी ज़ैनब कुबरा को, बीबी उम्मे कुलसूम को, और खसूसियत के साथ वक्त के इमाम इमाम ज़माना की बारगाह में उनकी शिकस्ता पहलू जद्द माजिदा की उस गुर्बत का, बीबी का वो पुरसा कि जो अपने बाबा के जाने के बाद बाबा के मदीने में रो ना सकी। बीबी, आज हम आपकी गुर्बत पर क्रिया करने के लिए बैठे हैं। ए वक्त के इमाम, हमारे आंसुओं को अपनी बात में कबूल करना, क्योंकि पुरसा इलाही उसे पेश किया है जो बानी होता है। बानी एजा बेशक वक्त बेशक में बेशक इजाजत बेशक चाहूंगी। बेशक बहुत फिर प्रोग्राम के बाद रोना चाहती हूँ, चीख चीख के रोना चाहती हूँ, ताड़े मार मार के रोना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम ऑन एयर पर नहीं कर सकते। मेरा दिल चाहता है कि ऐसे रो कि जैसे मदीने के घर में जब बीबी को ले जाया जा रहा है तो बीबी ज़ैनब कुबरा रो रही है, बाबा हमारी अम्मा को न ले जाओ। इमाम हसन हुसैन रो रहे। बस शुक्रिया जज़ाकल्लाह मौला आपको सलामत रखे। इस पुरसे को भी अपनी बारगाह में कबूल करे परवरदिगार, और उसके सदके से आपकी और हम सब की हर मुश्किल को आसान करे। बीमारों को सेहत कुल्ली अता कर मेरे मौला, जो हमें कहते हैं और नहीं कह पाते, बीबी के इस पहलू का वास्ता, इस इन मसाइब का वास्ता। इजाजत चाहूँ